Can I take questions now? Artika is also coming now. Yeah, I public administration. I'll write a blog by this weekend. I have already written one blog for GS. Most of it, what I have spoken, is from that blog only. You can refer to it. It is donreturns.blogspot.in, and it's DAWN. Mind it. And there is only one post, so you can easily find out. And if there is some doubt, I have given my email ID over there, so you can mail me if you want. Although I'm not a good consultant because I chose my own path, so I expect you also to choose your own. For public administration, definitely by the time today I'll be going back to Jaipur. I'll try to write it by maybe this weekend or within next week. I'll do that. Books, then you can contact me anytime. Come, Artika. Any other question to any of us? If you have any question, yes, please. How did you write the questions you hardly knew about? See, general thing you will know about the question. Jaise, which was the question? There was one question on regulators. Yeah, independent regulators. Independent regulators. Now, independent regulators is something जो आप maybe November में पढ़ के ना जाएं, December में ना, even though it's a part of the syllabus. I had not read it. तो ये देख के you get very afraid कि regulator तो पढ़ा ही नहीं. But here I would differ a little कि जब भी कोई question आए, spend 30 seconds thinking about it before writing. यही अगर आपसे पूछ लूँ ना मैं ऐसे खड़े करके कि stand up and tell me what are the independent regulators, you will not be able to answer. और यही अगर आपने थोड़ा सोच लिया then you will think कि अच्छा सेबी के बारे में तो पढ़ा है, कंपटीशन कमीशन पढ़ा है, कुछ क्रिकेट में भी कुछ हो ही रहा है इंडिपेंडेंट, तो यू कैन जस्ट थिंक फॉर 20 सेकेंड्स, मेक एन इंट्रोडक्शन, राइट कि हाँ जो भी तुम्हें जनरल दिख रहा है ना, कि सेबी का कुछ तुमने साल भर में पढ़ा, तुम कुछ लिख दो. आई एम जस्ट टॉकिंग आउट ऑफ माई माइंड. ऐसा होता है एग्जाम में. दिस इज वॉट आई एम सेइंग. डोंट बी स्कैर्ड टू थिंक 30 सेकेंड्स एंड देन राइट. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसका एक प्रीपेड मटेरियल दिमाग में था और वही लिख दिया. ऐसा एक क्वेश्चन इनफैक्ट आया था आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन जो मैंने पढ़ा नहीं था. अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन की टॉक अबाउट दिस एक्ट, कुछ ऐसा था. तो दैट वाज समथिंग विच आई हैड कम्प्लीटली मिस्ड. तो मैंने एक और चीज़ जो मैंने की थी, इट वाज दैट आई लेफ्ट वन क्वेश्चन इन ईच ऑफ द पेपर्स. ये मैंने टेस्ट सीरीज से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता था इन 3 आवर्स. सो व्हाट आई डिड वाज कि एक क्वेश्चन जो 20 में मुझे ना बिल्कुल शेकी लगता था, आई डिड नॉट अटेम्प्ट इट. पेपर 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी. 4 में आई अटेम्प्ट एवरीथिंग. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू. You said you used to link the current affairs topics with the main syllabus. So did you compile it in one place, heading wise, or how did you go back to it? How did you revise all of that? Actually, initially I did not. Initially it was all in mind only, but later on I realized that it is a futile attempt. So when I came to Delhi again in between pre and mains, at that time I used to make some notes. Newspaper articles. Yes, you will find in this blog. Live Mint newsletter is very good for economy. So there were multiple sources, but I was not a follower of any of them regularly. जब भी कहीं न्यूज़, बेस्ट थिंग पता है क्या है, इनसाइड के डेली सिक्योर आते हैं, उसमें सारे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं. आपको जो टॉपिक चाहिए वो पकड़ के और राइट क्लिक मार के ओपन अ न्यू टैब. एंड आर्टिकल्स ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड आर आल्सो रियली गुड. Yes, I would add to this answer. You know, I have written on Insights on India, अपनी स्ट्रैटेजी में, है ना. तो देयर व्हाट यू कैन डू इज़ कि अक्टूबर में ये चीज़ मैंने की थी, विच आई थिंक इज़ वेरी इसेंशियल. अक्टूबर मिड में ना आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं नवंबर के अराउंड. टेक अ कॉपी, राइट वन टॉपिक ऑन 1 पेज. आई क्लियरली रिमेंबर उस टाइम जुवेनाइल जस्टिस बिल आया था, बड़ी बातें हो रही थी ना इसकी पिछले साल बहुत ज़्यादा. राइट जुवेनाइल जस्टिस, मेक ऑन 1 sheet A4 what it was, 4 points, what prompted an amendment, what is it now, फर्दर क्या हो सकता है. रीड एटलीस्ट 3-4 आर्टिकल्स ऑन जुवेनाइल जस्टिस. बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, अबाउट 100. रीड जो भी तुम्हें 3-4 अच्छे लग रहे हैं, उनसे प्रोज 4 निकाल लो, कॉन्स 4 निकाल लो, एंड राइट इट डाउन. नाउ इफ़ यू डील विद अ टॉपिक इन दिस वे, इस तरह आपके ना, आई मेड सम 55 टॉपिक्स फॉर पेपर 3 कि
यू नो कुछ मर्जर सोच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन सोच रहे हैं, इस पे यू कीप ऑन गेटिंग आर्टिकल्स, जॉट डाउन द पॉइंट्स इन 1 A4 शीट. और ये काम आप नवंबर के पहले नहीं कर सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग टिल नवंबर. सो टेक 2 copies at least for paper 2 and paper 3 and make this. It will take a lot of time. आपको 3 दिन लग सकता है एक चीज़ में इन पेपर 2, 2 दिन लग सकता है पेपर 3 में, बट इट विल बी वंडरफुल. फिर जो वो वीक्स होंगे ना एग्जाम के पहले, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दैट कॉपी एंड इट्स इन योर हैंड राइटिंग. यू हैव कंपाइल्ड इट फ्रॉम 10 डिफरेंट सोर्सेज. यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो. दैट इज़ अ वंडरफुल सोर्स टू रिवाइज एज कम्पेयर टू आपके कुछ एवर नोट पे आर्टिकल्स हैं, कुछ कहीं और छोटी छोटी चीज़ें हैं. वर्क ऑन इट छोटे छोटा करके, ताकि 7 minutes में यू कैन रिप्रोड्यूस इट. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर रिविजन. नाउ सिंस ही इज तो मेरे को भी याद आ गया है. हाँ. फ्री के टाइम पे भी मैंने कुछ जिस्ट बनाई थी. दैट वाज नॉट लिंकिंग द फैक्ट्स. वो हिंदू के आर्टिकल्स आते थे, उनकी जिस्ट बना लेता था मैं कभी कभी. दैट वाज आल्सो नॉट रेगुलर. आई हैड सम 150 ऑड आर्टिकल्स, वही टॉपिक भी नहीं. आर्टिकल आया आज कि जैसे फॉर एग्जांपल वो नागा पीस पे कुछ आया था, द लॉन्ग लेगेसी ऑफ नागा पीस, ऐसे कुछ था. तो उस पर मैंने एक आर्टिकल बना लिया, मतलब उसको अपने वर्ड्स में लिख लिया. ये थोड़ा बहुत राइटिंग मैंने मेंस के पहले किया था, बाकी मेंस राइटिंग बाद में. यू कैन डू दैट. You also said that you are anti-engineering. यस. Then, is there any reason why you opt for public administration over national? There is a detailed answer on it, but I'll say I could not remember 20 formulas just to solve one question of heat and mass transfer. So that was the thing. And public administration has most relevance, is helpful in GS. I never wrote an answer. I was never a writer. Even my father used to say, यार तो बेटा हम लोगों का बैकग्राउंड हिंदी का है ना, that's why we are not able to write a good essay. But I could because public administration was there. Maybe. I was regularly following the Hindu from January, but I didn't go through the current affair issues of an institute. So simultaneously, I need to focus on economic survey, India yearbook. So what strategy I should I follow now? Strategy for connecting the facts. Current affairs. Current affairs. Visionized current affairs is the best. Yeah, you should do that. Read newspapers and again Indian Express only opinion, Business Standard only articles and Hindu पूरा पढ़ लो यार, क्योंकि you need दो मसाला जो है ना, जो ethics में डालने के लिए और कहीं भी डालने के लिए, वो सब कोई एक अखबार पकड़ लो, है ना. Hindu is good and Insights gives these 10 articles every day, na? That is हाँ good, that is is also very there. good. Inside gives that. You can do that. बहुत सारे sources हैं यार आजकल तो current affairs के लिए, but make sure that you have मतलब you are not bogged down by it. इतने मत पढ़ लेना कि कुछ समझ ही ना आए. बस जितना कंट्रोल में है, तुम्हारा जो ऑप्टिमम और थ्रेशोल्ड है, यू स्टिक टू दैट. No. Paper 1 is not for, हाँ, society वाले में you have to. Society वाले questions. Only for dynamic. Paper 4 में नहीं. Paper 4 is anyway all about you. तो मतलब whatever you write is like an introduction only. You can come, मतलब it's very expressive. Paper 4 is about you. तो वो तो आपको जैसे लिखना है लिख दो. 2 and 3 में I was saying कि थोड़ा सा you know all this matters. बस 1 में it's not essential. 1 तो is history geography. So leave it. For ethics, it is there for ethics, ना? हाँ. Disaster वाला I did, whichever it is. Only the blue boxes. ठीक है, blue boxes ही बहुत सारे हैं in that report. It's about कितना 100-200 pages or more. So learn the blue boxes. End में उन्होंने ना points दिए हैं in any disaster and they have such specific points की role of army, role of medical personnel. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम regularly भूल जाते हैं in writing about a disaster. तो इसलिए I would say spend 1 day in reading that ARC report और उसको highlight कर लो, boxes याद कर लो. They have given कि लोकल कि अंडमान में लोग ऐसा बैम्बू से घर बनाते हैं कि उनके फ्लड्स नहीं होते, कुछ ऐसा. देयर इज़ एन एग्जाम्पल. सो दीज आर थिंग्स यू डोंट फाइंड एनीवेयर एल्स. ठीक है, तो स्पेंड टाइम इन दैट 1 रिपोर्ट. इट यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजास्टर. ठीक है. एथिक्स आई हैव नॉट रेड फ्रॉम ARC. I had prepared a summary of ethics in governance from second ARC. That was the most thorough ARC report that I had done.
since I was having an optional as pub ed, so I read many other, but ethics in governance is good. You should read it through, because that will give you a glimpse of what UPSC is expecting. So I think ethics in governance, if you have time, then you can go for it. एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. सर। पीटी के लिए स्ट्रैटेजी और कोचिंग की भूमिका कहाँ तक हो सकती है, और समय कितना लग सकता है, कितने साल पढ़ाई के लिए? ये क्वेश्चन किसके लिए, मेरे लिए या मैडम के लिए? सबके लिए, मतलब दोनों के लिए। Respond to it. You have not done any पीटी question. के लिए स्ट्रैटेजी, अच्छा, पीटी फॉर विदाउट कोचिंग? नो, मतलब अच्छी कोई भी हो स्ट्रैटेजी। Best, अच्छा। he wants best strategy, बेस्ट स्टार्ट। whatever it be. ओके, पीटी के लिए आई डिड नॉट डू एनी कोचिंग, ठीक है, एंड मुझे लगता है किसी को नहीं करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ योर थिंग। आई वुड से कि अगर आपके पास एक ही साल है, इन्वेस्ट योर टाइम इन मेंस। पीटी के लिए डू द एसेंशियल बुक लिस्ट जो सब बताते हैं, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स सर्वे, 11th 12th NCERT, ज्योग्राफी की 6 to 12 जो भी सब बताते हैं, वो तो यू नो है ना, वो तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम साइट्स। एंड वंस यू आर डन विथ इट, बाय 2 decent टेस्ट सीरीज फ्रॉम एनी 2 decent वो कोचिंग, कोई भी जो भी 2 अच्छी चल रही हैं उस साल। आई बॉट इनसाइट्स एंड विजन स्पेसिफिकली आई वुड से इज़ वेरी वेरी गुड। वो आपका प्रिपरेशन यहाँ ले जाएगी। मेन एग्जाम यहाँ होता है, तो इफ़ यू हैव डन विजन तो आपको मेन एग्जाम विल सीम लाइक अ पीस ऑफ केक। आई कुड नॉट बिलीव कि मेन एग्जाम में पूछा था कि नीति आयोग किसको रिप्लेस कर रहा है और इसके 4 ऑप्शन थे, पार्लियामेंट और ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, और एक था प्लानिंग कमीशन। तो मेन एग्जाम इज एक्चुअली ईजियर देन दीज टेस्ट, विच इज़ वाई आई एम सेइंग टेस्ट ज़रूर दो and give it with full sincerity and diligence. You will definitely get through pre. Tests are important for prelims and mains. कोचिंग की भूमिका कहाँ तक है मैडम, मतलब कहाँ तक इम्पोर्टेंट देना चाहिए कोचिंग को? प्री में तो मैंने की नहीं थी, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक ऑन दिस। मेंस में भी मैंने नहीं की थी। टेस्ट सीरीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा है, बस कोचिंग मुझे नहीं पता यार, बिकॉज आई डिड नॉट डू। आई हैव फ्रेंड्स लाइक टीना द टॉपर, शी वॉज टेलिंग मी शी वॉज अ क्लासरूम कोचिंग किया है उसने, तो दैट वर्कड फॉर हर। I am not qualified enough. Ashish, I was somewhere in between. I joined the coaching, but because of the job, I could not do it continuously. If you have joined a coaching, a good coaching, it is good. They will give you a clear direction. But it's not like that. If you do not join coaching, you cannot clear the examination. So it depends on your choice. If you want to spare the time, then you can do it. But it's your call. I cannot say. I'll say without coaching also this examination is very easily possible. अच्छा सर, कितने साल लग सकते हैं, मतलब साल यार, साल तो ऐसे हैं कि अब देखो हम दोनों तो ऑलमोस्ट एक साल वाले हैं, तो कई लोग हैं जो 5-5 साल वाले भी हैं, उन्होंने भी कोचिंग की है। सो इट्स अगेन, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक, ब्लेसिंग्स दैट यू हैव, द विशेस यू कैरी। blessings your optional. हाँ, Very important. ऑप्शनल भी यार, पवेड था तो इसलिए ऑप्शनल को थोड़ा भूल गया। तो पवेड थोड़ा ऑप्शनल ऐसे ही है ना, तो या ऑप्शनल Very important. Excuse me. Sir, what is the role of diagrams in the answers? Should we make diagrams in all the I made only one diagram in essay throughout my whole mains. That was to show inclusive growth. 4 circles. Vajiram में किसी ने कोचिंग की होगी तो संजीव वर्मा सर used to give that circle. So in the rest of the GS, is it necessary to make in all the questions or whenever? एक मिनट। I did not make any diagram. And still I have, perhaps I have the highest in GS. So you don't need to do that. सर मेंस का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना ठीक रहेगा? बिल्कुल definitely. प्रीलिम्स है, मतलब 16 अब यार डेज ऐसा आर है कि रिमेनिंग। prelims है तो क्या जून चल, 1 जून है क्या, कितना 3 जून है आज, ज्वाइन कर लो। विजन में तो वैसे बहुत फ्लेक्सिबल है यार, अभी 1 महीने दे लेना, उसके बाद होल्ड करना, मेंस के प्री के बाद फिर दे देना, थैंक यू। कैन डू दैट। ओवरलैपिंग जो चीज़ है प्री और मेंस की, वो अभी पढ़ के अभी टेस्ट भी दे दो। आई गेव इकोनॉमिक्स का टेस्ट इन मई, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है ना इकोनॉमिक सर्वे, तो डू दैट विल हेल्प। एनीथिंग एल्स? जो बनाए थे वो मैंने तो नहीं पढ़े, बट बना सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस कि आप
thorough raw with your newspaper, what I did, I'm only telling you that. And at the end, there are all sorts of compilations coming. ठीक है, तो don't take so much stress कि मेरा आज का एक वो नोट नहीं बना है, because the truth is this कि end में बहुत कुछ आता है. Use that time to make that notebook which I said. वहाँ पे तुम compilation भी ले लो, अपने notes भी खोल लो, insights का भी देख लो, कोई और coaching friend कर रही है उसका भी ले लो. Make invest time there कि एक पेज में वो पूरी चीज़ हो जाए from 10 different sources. जैसा कि he was saying कि लिंक करो और ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल, ये सब तभी आएगा ना when you have many sources. If you say कि मैं तो हिंदू पढ़ती हूँ, मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, मैं यही पढ़ूंगी लास्ट डे तक, then you will not be able to link other things. ठीक है, तो do any one thing, एंड में सब कुछ everything is available at the end. If you can make, please do it. If you have time. Exactly. Sir. That will help. मतलब अपना handwriting of course. Sir, you said about the hobby problem in personality test. How did you tackle it? I mean, Actually, hobby को लेके यार actually क्या है कि I have very bitter experience and a good also. I had one hobby. College में एक initiative था हमारे college में. One of my batchmate is sitting there. I see him right now. So there was a hobby. मतलब एक NGO टाइप का था, संकल्प NIT जमशेदपुर. बच्चों को पढ़ाने जाते थे in the vicinity and संकल्प NIT जमशेदपुर. I wrote that as one. Secondly, मेरे को किसी ने बोला था कि यार हॉबी थोड़ी 3-4 लिखना ताकि वो डाइवर्स रहे, और मतलब मैं आई वॉज फूल दैट आई फॉलोड हिम. दूसरा मैंने लिखा वॉचिंग मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर थीम. वर्ल्ड वॉर क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी है, सो आई डिड दैट. एंड थर्ड वॉज वॉचिंग क्रिकेट ओकेजनली. These were my hobbies and it was a disaster. Believe me, it was a disaster. There was one mock at Vajirams where some senior DG, retired DGP was sitting. He was like, watching movies based on World War theme, why is it so? I justified, sorry, I want to know the course of the events that changed the history. He was like, then if you are so interested in it, why didn't you apply for any other defense examination? वो DAF में होता है, UPSC में कौन कौन से एग्जाम के लिए अपीयर किया है. मेरा नील था. तो बोले I believe this man has fascist tendencies. He was like literally like this. And are you a follower of Hitler? अब वैसे गलती क्या हो गई ना, मैंने बोल दिया कि सर I do not follow him, but yes his leadership style was such that he could, मतलब कितना transformational leadership था, he could lead the Germany to ruins. So such was the leadership style. So sir, if we may have that kind of leadership style in a positive sense. ओ भाई वो चढ़ गया ऊपर. नहीं दिस मैन इज फासिस्ट टेंडेंसी, अगर ये बन गया ना तो ये तो पूरा जिला हिला देगा. और मतलब आई वाज सो डिमोटिवेटेड. दैट वाज माय लास्ट मॉक. आई वाज सो डिमोटिवेटेड. मेरे को लगा यार मतलब ब्लंडर कर दिया भाई, अब तो कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज योर डैफ वंस यू हैव फिल्ड. सो प्लीज फिल योर डैफ वेरी सीरियसली. हॉबी तो यार होती नहीं है तो अच्छे से वो दैट वाज फर्स्ट हॉबी जो है वो संकल्प वाली, दैट हेल्प्ड मी. दैट वाज द ओनली हॉबी आस्क्ड एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू क्लियर दिस. Otherwise, please do fill your hobbies seriously. Yes, I want to add this that I used to read everything, but recently I started reading religious philosophies, right? So I was very enthusiastic about it and I talked to somebody and I wrote it down कि ये तो बड़ा अलग सा है, वो पूछ लेंगे और पढ़ा भी है. तो मैंने लिख दिया नवंबर में. उसके बाद शुरू हो गया ये सब कि ये गवर्नमेंट बड़ा रिलीजन फैला रही है, इनमें रिलीजियस फिलॉसफी कर रही है, इंडोक्ट्रिनेट कर रही है लोगों को एंड दिस एंड दैट. देन आई वेंट फॉर मॉक्स एंड मुझे इन ईच एंड एवरी मॉक द पर्सन टोल्ड मी इन द एंड कि ये तो आपने गलत लिख दिया है, मतलब यू विल बी स्क्रूड इन दिस हॉबी. तुम बोलोगी कि मैंने हिंदुइज्म की, आई हैड रेड रामायण एंड महाभारत एंड गीता, सो आई थॉट कि मैं इस पर बोल दूँगी. नाउ दे स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा तो इस्लाम का क्यों नहीं पढ़ा, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं पढ़ी, यू हैव रिटन रिलीजियस फिलॉसफी, यू हैव नॉट रिटन हिंदू फिलॉसफी. सो आई वॉज टोल्ड रिपीटेडली कि ये तो तुम्हारा, दिस इज़ योर ग्रेव, you have dug it yourself, or being a Hindu you will go and say I've read Hindu things, then it's bad. But the best thing was that I went there and मेरा पढ़ा वो Mr. Vinay Mittal board and somebody from the edge started saying कि बेटा आपने religious philosophy इतना बोला उन्होंने, and Mr. Mittal says no, that is not an appropriate question for an interview, छोड़ो कुछ और पूछते and nothing was asked from that. Even that question was not completed. I was not asked to take a stand. Nothing happened. And मैंने इतना पढ़ा था. I even bought a book on Islam philosophy और मैंने वो भी पढ़ा थोड़ा.
नो गॉड बट गॉड, अ वेरी नाइस बुक. तो ऐसा भी होता है. सो इट इज़, मैंने काफ़ी लोगों से सुना बाद में कि पीपल मतलब दे एक्चुअली टेक गाइडेंस वाइल फीलिंग डैफ, सो दैट इज़ गुड. आई थिंक दैट यू कैन डू. Don't mess it up. I think I was rude enough not to ask anyone. हाँ. So I may have Should ended ask. in a disaster, but fortunately I have not. So please do take care of it while filling your DAF. Yes. History part, how should be the answer approach to such history questions with regards to ancient, medieval? Means what should be the strategy if both of you can answer that, please? First of all, I remember you. You were in B4 Vajiram batch, right? Yeah. So ancient India की classes होती थी ना, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे. So you follow that. Nitin Singhania's notes. That is good, and do as many tests as possible. Regarding answer writing, what you can do. For example, question generally क्या है? Question ऐसे आते हैं. Either there are two patterns. या तो चीज़ें evolve हो रही हैं या चीज़ें compare हो रही हैं. They will say इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर जब इंडिया में आया तो वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. जनरली ये सब क्वेश्चंस होते हैं. तो इन दैट यू हैव फुल हिस्ट्री कि हाँ वो आया और असिमिलेशन, इंटीग्रेशन, फॉरेन इन्वेडर्स, ये सब कहानी है उसमें. और चीज थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड. इन दैट केस इफ यू हैव सो मेनी पॉइंट्स, राइट इन बुलेटेड. अदरवाइज टू मैनिपुलेट द एग्जामिनर, राइट इन पैराग्राफ्स. So I think art and culture, it depends on the writing style only, because there is no fixed format. Depending on the question you should do. और material तो ठीक है, बहुत है market में. Lot of material. Choose any. I struggled in art and culture. I read Vision का material. I read NIOS. I read Nitin Singhania. I bought NCERTs in November. Themes in Indian or something जो लोग कहते हैं कि आर्ट के लिए पढ़ो. And I read ancient history की NCERT. और इवेंचुअली क्वेश्चन इनमें से किसी से नहीं आया. हाँ क्वेश्चन आया कुछ स्टोन एज के कुछ समथिंग. आई डिड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आया था, आई डिड नॉट अटेम्प्ट एंड आई रेड 5 सोर्सेज फॉर इट. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग मैं मतलब एक बोलना चाहता हूँ. वी आर जनरली, हमको बोला जाता है कि क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने का है. डोंट डू दैट. क्वेश्चन पहले वही अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट आता है. ठीक है, जो बेस्ट आता है वो आप वही आपका इनर्शिया आउट करेगा. आप घटिया क्वेश्चन में फंस जाओगे ना पहले, आप कभी इनर्शिया से बाहर नहीं निकलोगे, और जो आप कर सकते हो वो कर नहीं पाओगे. ऑलवेज अटेम्प्ट द GS1 में हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाता था मैं. आई वॉज गुड इन दैट. सो डू दैट. आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चन है ना, ये मैं लास्ट के 10 मिनट में 3 लिखे थे, कुछ पता ही नहीं था. अच्छा, तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. इफ यू आर नॉट गुड, मेक श्योर यू अटेम्प्ट. दैट इज रिक्वायर्ड. साइट्स के कोई नोट्स मैंने बनाए थे जो वो डेली देते हैं, वो खोलो अपना पेपर 2 की कॉपी एंड स्टार्ट सीइंग कि व्हाट आर द इश्यूज. लाइक यू सेइंग, अगर हरीश रावत को कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये हो रहा है, दिस इज न्यूज़. द इशू इज एंटी डिफेक्शन, द इशू इज जुडिशियल एक्टिविज्म. तो इवन विजन का करंट अफेयर इज़ वेरी नाइस, बट इसमें भी ऐसा होता है कि 2-3 बातें रिपीट हो रही हैं. अब एंटी बुल स्लॉटर का लॉ महाराष्ट्र में आ गया है, बीफ बैन यूपी में चल रहा है, वो मोहम्मद अखलक वाला इंसिडेंट हो गया. तो पूरे कंट्री में ये न्यूज़ है. What is the issue? The issue is वो सब कि फ्रीडम आपको है या नहीं, फ्रीडम टू ईट वॉट यू वॉन्ट. दिस इज़ द इशू कि जो गवर्नमेंट है वो रोक रही है. इसी पे ना है डिबेट कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. रिलीजियस आर्टिकल 25 कम्स कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कहती है नहीं स्लॉटर करना है तो क्या आप कर सकते हो. दिस इज़ द इशू. तो इसमें मैं कह रही हूँ दिस विल टेक टाइम एंड दिस विल टेक थोड़ा ना मेंटल एबिलिटी कि तुम उसको छांट के फाइंड आउट द इशू. अब उस इशू को लिखो. राइट डाउन बीफ बैन. व्हाट इज द इशू, कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए हैं, एंटी भी और प्रो भी. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. रीड सम नाइस आर्टिकल ऑन बीफ बैन. तुम बीफ बैन गूगल पे डालोगे, यू विल गेट 5-10 आर्टिकल्स. रीड एनी 2 जो फेमस लग रहे हैं, जो ज़्यादा लोगों ने पढ़े हैं. रीड द कंक्लूजन्स, व्हाट कैन बी डन. पंडित, आई रिमेंबर बीफ बैन क्योंकि मैंने इसको बड़े अच्छे से लिखा था. तो पंडित नेहरू हैड सेड समथिंग अबाउट दिस रिलीजियस फ्रीडम उस टाइम पे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. तो ऐसा कुछ मिल जाए. राइट अ 2-line कंक्लूजन, देन गेट फिनिश्ड विद द टॉपिक. तो अब बीफ बैन हो गया इन 1 पेज, जो 1 साल तक रोज आया है पेपर में, एंड विच विल कम इन द एग्जाम ऑल्सो. जुवेनाइल जस्टिस सेम थिंग.
एक पूरी प्रो लॉबी चल रही है, एक पूरी एंटी चल रही है। एक कह रही है 16 में जेल में डालो, और एक कह रही है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो चाइल्ड राइट्स ही वो हटा दे रहे हैं कि आप 16 में किसी बच्चे को जेल में डाल रहे हो। तो रीड बोथ, PRS पे जाओ, PRS पे देर आर डिस्कशंस, एक अच्छे से 10 नहीं, 4 प्रोज 4 कॉन्स निकालो, उसके एक कंक्लूजन निकालो। मेनका गांधी ने बहुत लिखा है इस पे, तो रीड सम नाइस आर्टिकल अबाउट इट, और इन वन दिस साइड एंड वन दिस साइड, इन 1 A4 फिनिश एन इशू। और ऐसे आपके पास, मेरे पास जैसे 50-55 हो गए थे एट द एंड। क्वेश्चन उन्हीं से आना है, फिर वो ऐसा 1-2 आ जाएगा इधर उधर से, बट अदरवाइज इश्यूज विल बी द सेम। सो ऐसे करना, इट विल टेक टाइम बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैंने खुद नहीं बनाया था, मैंने एक वाजीराम की कोई आती है बुक, वो पढ़ी थी, विच इज़ नाइस। कोई सर है ना, पवनी तो समबडी, वो मैंने पढ़ी थी, इट वाज नाइस। एंड विजन से जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इफ़ यू कैन राइट इट दैट इज़ वंडरफुल। वो पढ़ने के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए। इवन इनसाइड फॉर दैट मैटर, हाँ, even फ्री inside. रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। इकोनॉमिक सर्वे मैंने किया था विजन के 20 शायद, और इनसाइट्स के 35 थे, उसमें से मैंने 20 to 35 खरीदे थे, तो इट कम्स आउट टू बी 35 टोटल, 35 टेस्ट्स घर पे बैठ के, नॉट टाइम्ड। During the whole GS paper, have you written all the answers in the points format itself? Or the paragraph should be the major area, or some bifurcation between where to write in points or where to in. Because there are 2-3 criteria whether to write on points or not. If the question is demanding compare and contrast, and you have points, go for bulleting. Bulleting is done when you have more content and you want to show off your knowledge. Obviously, you should if you have. The public administration में बहुत simple question होता है. Differences between powers of chief secretary and cabinet secretary. I had 10-20 points on each, so I always used to write on this. Then generally paragraph, I'll say I generally followed paragraph. Bulleting was done when I had less time. For example, when I finished in vision, in 45 minutes I wrote 9 questions, all were bulleting only, because then you don't have time, you just have to finish it. Paragraph में तो एक argument में ही खेलते रह जाओगे, है ना? तो that depends on the content that you have, or the time that is left to finish the paper, or in whatever way you are comfortable with. If you are comfortable with paragraph, go for it. Sir, can we start the introduction with the points format also, or the That is strictly avoided. That is to be done only when you are dying. That means you have only 5 minutes and you have two answers to write. Introduction तो यार थोड़ा पहला में होना चाहिए ना. Introduction bulleting में डालोगे तो खत्म, मतलब. Thank you, sir. I think yeah. I will attempt the prelims next year. So I have too much time on my hand right now. So when you say that start practicing writing answers, what do you mean? For example, if I read a chapter from NCERT, do I have to close the book and close my eyes, think about it, write down what I have learned? Are you suggesting this or something else? What I am saying is, for example, GS1 is quite static. GS1 where you need to memorize the thing and understand the thing. GS1 except for society, like Artika said. So GS1 is that. GS2 and 3 is mainly current based. So क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन बहुत कम होता है, तो इवेंट आता है तो यू लिंक इट विद द सिलेबस, सो दैट अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी है तो भी तुम उसको डायनामिक बना सको. दैट इज टू बी डन. अब 1 साल है तुम्हारे पास तो बढ़िया यार, इनसाइड के क्वेश्चन लिखो डेली, 1 घंटे तो लिखो कम से कम, बढ़िया हो जाएगा राइटिंग. डू ऑल द इनोवेशंस दैट यू कैन डू, राइट जितना अनशन लिख सकते हो लिखो, गेट इट वेरीफाइड, गेट इट चेक्ड, गेट इट काउंसल्ड बाय योर फ्रेंड्स टीचर्स, यू विल इम्प्रूव अ लॉट. राइटिंग से ही होता है यार, नोबडी, कोई लिखता तो है नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं या मतलब डॉक्टर्स, तो वी डोंट राइट, वी आर अकस्टम टू फॉर्मूला और दन कर दिया, बट दैट इज नॉट द यूपीएससी इज. सो वी ऑल हैव दैट प्रॉब्लम एंड बिलीव मी एवरीवन हैज़ दैट प्रॉब्लम. मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको राइटिंग तो सबको इनर्शिया रहा है. सो यू आर नॉट न्यू इन दिस फील्ड, एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. स्टार्ट राइटिंग एंड ओवरकम इट. I think we are done. Okay, thank you.